Good evening and welcome, friends. And in fact, let's begin this live and breaking with a breaking news development coming in connection with the Delhi Coaching Center tragedy. Information is that the MCD Municipal Corporation of Delhi is in action, and a team has reached to seal illegal basements of many coaching centers. Remember, in this Rajendra Nagar area where this ill-fated incident happened, there are many coaching centers, in one of which this tragedy panned out last evening, leading to the death of three IAS or civil services aspirants. And now MCD getting into action, of course belated. Had this action happened in time, those three lives could have been saved, and this action might not be enough. In fact, we know what has exactly happened at Rajendra Nagar, where three students lost their life because they were in a basement which was supposed to be a go-down and not a library, but it was turned into a library illegally, and they were studying there when the flood waters came gushing in, and this was like a storm flood where because of high intensity of rains in Delhi yesterday, waterlogging happened, and as can be seen in the pictures, the gates were opened, leading to the water gushing inside the complex and then into the basement area, and some glaring lapses coming out of those moments which made escape for those three students difficult. In fact, I am joined in the studio by Divyanshu Yadav, right? Divyanshu Yadav is a civil services aspirant himself. He, in fact, is a student of that IAS training center, the Rouse IAS training center, where this tragedy panned out last evening. In fact, Divyanshu, you suggested that you were actually there yesterday when this episode happened. Maybe not at that exact time, but you attended your own classes yesterday. Yes, Please sir. tell us how, what exactly happened. सर मैं वहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में अपने आंसर राइटिंग कर रहा था और 12 बजे के आसपास मैं घर चला गया था अपने फ्लैट पे, मुझे थोड़ा सा काम था। तो 7 बजे के आसपास मुझे फ़ोन करके बताया मेरे दोस्त ने कि यहाँ पे आओ, कुछ हो गई, समस्या हो गई है, पानी भर गया है सब। तो मैं वहाँ पे आया तो मैंने देखा तो मतलब एक बहुत ही तेज़ मात्रा में पानी, जो एकदम फ्लैश, जो आपने वीडियोस भी देखे होंगी, सब देखे होंगी, एकदम सीधे अंदर जा रहा था। पानी हमेशा वहाँ भरा रहता था, कोचिंग के अंदर ही भरा रहता था, उसको प्लास्टिक की स्लैब लगा के रोकते थे, लेकिन जब बहुत प्रेशर से पानी गया तो सब अंदर जा रहा था। जो अंदर से दोस्त निकल के बाहर आया मेरा, उसने मुझसे बताया कि 5 फीट तक पानी 30 सेकंड के अंदर उसके अंदर पहुँच गया था। 30 सेकंड में 5 फीट पानी अंदर आ गया था सर, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है और पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, और उस वहाँ पे किसी और बिल्डिंग में बेसमेंट नहीं है उस जगह पे, सिर्फ इन्होंने छुपा के कंसील करके बेसमेंट बना रखा है। तो आप उसमें बेसमेंट में क्या है, क्या करते हैं वहाँ? बेसमेंट में सर बेसिकली आप जैसे आपने बताया ना कि वो स्टोरेज रूम था, वहाँ पे हम लोग को कोर्स मटेरियल मिलते थे, टेस्ट सीरीज़ के कोर्स मटेरियल मिलते थे एंड डिफरेंट बुकलेट्स देते थे, लेकिन उसी पे इन्होंने 100 से 150 कुर्सियाँ लगा दी कि आप लोग इसी में टेस्ट सीरीज़ अपनी कर लेना, और जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो ये ऑफ़र देते हैं कि राजेंद्र और वारन में लाइब्रेरीज़ महंगी हैं, 3000 से लेके 5000 तक रुपए की हैं। तो ये पर मंथ 3,000 to 5,000 rupees just to sit there. एंड ये कहते हैं कि हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, लेकिन आप अभी उसको यूज़ कर सकते हो। तो it is proper library, like with books, periodicals, No, everything. sir. We have to carry our items. It is just a seating area. Just sitting area. And how big an area? Sir, around 100 and 120 people can sit there. 120 people can sit there. Yes, sir. And you are just studying. Just studying. तो और एंट्री और एग्जिट का एक्सेस का क्या तरीका है? सर बहुत ही ख़राब तरीका है। एक स्टेयरकेस है, उससे आप ऐसे सीधे जाओगे पहले, फिर आप लेफ्ट लोगे, फिर लेफ्ट लोगे, फिर राइट लोगे, फिर लेफ्ट पे गेट है, वो भी ग्लास का गेट है। और सर जैसे कल की खबर है, कल मैं वहाँ पे मौजूद था तो इन लोगों ने तुरंत लाइट बंद कर दी, जैसे पानी अंदर जाने लगा लाइट बंद कर दी। सर अगर आप दिन के 12 बजे में जब पूरा सूरज की रोशनी हो तब अगर आप लाइट बंद कर दो तो आदमी उसके अंदर डर जाएगा, क्योंकि वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है, ना कोई गेट है। जैसे मैंने बताया ना, इतना कंसील करके गेट बनाया हुआ है, तब आदमी तब घबरा जाएगा। तो जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे, जब इन्होंने लाइट बंद कर दी और पानी आ रहा है तो उसी पैनिक में डेथ हुई है। तो ये जो डेथ हुई है ना, इसका
मेन जिम्मेदार जो है वो राउस आईएएस ही है, और दूसरे जिम्मेदार है ये एमसीडी ऑफिशियल्स, जिनको पता था, उनको तो सर पता था, इंस्पेक्शंस भी होते हैं, इन्होंने एनओसी दी कि वहाँ पे स्टोरेज रूम बनेगा, लेकिन वहाँ पे चेयर्स लगे, सबने देखा, तो सर कैसे ये पॉसिबल है कि वो लाइब्रेरी चलती रही, वहाँ पे चेयर्स लगा दी। तो स्टूडेंट्स ने पहले कभी इस बारे में ध्यान दिलाया था? सर कई बार ध्यान दिलाया कि पानी ऊपर भरा रहता है, शूज़ गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये लोग ईंटें लग देते हैं या कोई स्लैब लगा देते हैं कि शूज़ गंदे ना हो, आदमी निकल जाए। वही पानी थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है तो ये लोग साफ़ सफाई कर देते हैं। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा। उम्मीद दूसरी की लाइट वाइट की डर रहता था, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पानी आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी करी थी? हाँ जी सर, मेरे साथ का एक दोस्त है, उसने कंप्लेन की थी, 12 दिन पहले कंप्लेन की थी उसने, और एमसीडी में कोई एक्शन नहीं लिया। आनंद पर्वत ऑफिस में अभी भी पेंडिंग पड़ी है। सिर्फ 12 दिन पहले कंप्लेन की? 12 दिन पहले कंप्लेन की थी, एग्जैक्ट। और सर एक और बात आपको बताता हूँ, जिस दिन की ये घटना है, ये राउस वाले एक डीएनएस करके प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स बताते हैं। तो जो टीचर क्लास ले रहे थे लाइव, आप वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे, अभी डिलीट नहीं किया होगा उन्होंने, तो दिख जाएगी, डाउनलोड कर रखी है हम लोगों ने। तो उसमें ये बोल रहे हैं टीचर कि इसको जल्दी जल्दी मैं निपटा देता हूँ, पानी आ रहा है, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कोई वीडियो है? ऐसा वीडियो है सर, सर राउस आईएएस के टीचर फैकल्टी का वीडियो है खुद का। कितने दिन पहले का? सेम डे का सर। कितने बजे का है ये? ये सर करीब वही 6 बजे घटना घटी है, 6 बजे शुरू हुआ है पानी आना, उससे जस्ट पहले का। सर उनको सारी जानकारी थी राउस आईएएस वालों को, लेकिन सर जानबूझ के सर बताइए ऐसा किया है, क्या बीत रही है। मतलब आप स्टूडेंट अंदर पढ़ने गए हैं, बैठ के पढ़ते पढ़ते सर मौत हो जाए किसी की, इससे भयानक। वहाँ उस समय कितने लोग रहे होंगे अंदर? उस समय 30 से 35 लोग थे। और सब निकल आए? सब निकल रहे थे, लाइट बंद कर दी इन लोगों ने ना, ये तो लाइट बंद कर दी, तो जो निकल रहे थे उसमें कुछ पैनिक हो गए, पानी और बढ़ गया अचानक से 5 फीट बढ़ा। कुछ तैर लेते तो तैर के आए, तो एनडीआरएफ वालों ने जब निकाला है तो बहुतों को पानी निकाला है। टोटल 13 लोग अंदर ट्रैप हो गए थे, इनको एनडीआरएफ की मदद से। सर इसमें कमी थोड़ी अथॉरिटीज़ की भी रही है, हल्की सी, कि पहले दिल्ली पुलिस पहुंची वहाँ पे, कांस्टेबल्स, तो वो लोग मिटिगेट जल्दी नहीं कर पाए, कहे कि बिजली फैल जाएगी या पानी बाहर निकालते, तो दिल्ली फायर सर्विस को बुला लिया। लेकिन फायर सर्विस वाले जब तक मोटर लाते तो पानी पूरा भर चुका, तो स्कूबा डाइवर्स आने में टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर्स की ज़रूरत थी। और कोर्स मटेरियल था सर, सब चेयर्स थी, तो सब डूब के ऊपर आ गई। तो आपको लगता है ये सब लोग जो वहाँ पढ़ते हैं, आईएएस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, ये समझ में आता है कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये करप्शन के कारण है, एक ही कारण है उसका, करप्शन? बिल्कुल सर, एक 110% करप्शन है। सर आप बताइए ना, मतलब हमारा देश विकसित भारत के मैप पे चल रहा है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन सर ऐसा कैसे चलेगा कि सब लोग, एमसीडी तो इतना करप्ट डिपार्टमेंट है एमसीडी, ये लोग ऐसा लीगलाइज कर दिए हैं कि आप इतना पैसा दो हम ये चला देंगे। आप सर अभी नोटिस निकाली एमसीडी ने, और एक सबसे बड़ी बात है ना कि ये लोग पावर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने देखा भी मेयर इतना हेल्पलेस फील कर रही है कि मैंने लेटर लिखा है अपने कमिश्नर को कि आप जाके एक्शन लो। अब सर ये बताइए कोई बात होती है कि मेयर है, जो चुना हुआ मेयर है, वो लेटर लिख रहा है कमिश्नर को कि जाओ एक्शन लो जाके। ये सर ये तो मतलब ये बताइए, ये जो स्टूडेंट्स सारे वहाँ, आप कब से पढ़ रहे हैं वहाँ पे? सर मैं 9 महीने से पढ़ रहा हूँ, पिछले 9 महीने से। हाँ। तो ये लगभग दूसरी बार बरसात का एक सीजन आया, आप कह रहे हैं आगे भी वाटर लॉगिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी बार स्टूडेंट्स ने सेंटर में जाके बोला कि ये समस्या हो सकती है? सर हमेशा बोलते रहते हैं, बता तो रहा हूँ मैं, जब आप अंदर आदमी जाता है तो वही पानी भर जाता है, लेकिन वो जब बना देते हैं तो आदमी कहता है कि मैं निकल जा रहा हूँ, बेसमेंट में सारे लोग जाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से रह जाता है। सर एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सर 1,75,500 मिनिमम एक बच्चे की फीस लेते हैं ये लोग वन टाइम में। और सर अब उसके बाद ये ऐसी मौत हो जाए, और सर इतना इलीगल है, कोचिंग है, सारी भी जांच करेंगे लोग, फिर से चलने लगेगा सर, और चलना नहीं चाहिए। और सर जैसे 3 बच्चों की मौत हो गई, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे अब नहीं पढ़ना चाहेंगे। सर आप बताइए, जैसे कोई मैं हूँ, अब मैं उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, कभी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, कि जहाँ पे 3 मौतें हुई हों। तो सर मैं ये मांग करता हूँ कि राउस आप लोग भी मदद करिए, सब लोग मदद करिए, कि जो स्टूडेंट ये मतलब मरने तो कोई आया नहीं, पढ़ने आया है, तो हम पढ़ लेंगे, कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हम अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इन लोगों को पूरी फीस रिफंड करनी चाहिए। ये मुद्दा सर आपको उठाना चाहिए। दिव्यांशु, मैं आपसे बात जारी रखूंगा, पर हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट हरेंद्र चौहान वॉज प्रेजेंट, आप सुबह थे पर हरेंद्र चौहान तो शाम को वहाँ पे थे,
जिस समय ये वाकया हुआ। हरेंद्र चौहान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू लिसन टू मी? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। आप आई विटनेस हैं, आप जरा हमें थोड़ा दर्शकों के लिए बताएं कि वो क्या मंजर था, कैसे एकदम से पानी आया। दिव्यांशु हमारे साथ स्टूडियो में बैठे, वो बता रहे हैं कि 5 सेकंड में या 30 सेकंड में करीब 5 फीट पानी भर गया था वहां पे। आप खुद वहां मौजूद थे, बताइए उस समय घटना कैसे हुई। सर एक्चुअली क्या थे, बारिश स्टार्ट जैसे ही हुई थी तो हम लोग 2-3 लोग थे, तो ऊपर आके हम फ्रेंड्स के साथ अपने चाय पीने के लिए निकलने वाले थे एक्चुअली। लेकिन बारिश थोड़ी तेज हो गई तो सोचा चलो पढ़ने बैठते हैं लाइब्रेरी में, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी। और लाइब्रेरी राउस की जो है 7 बजे बंद हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है, 7 बजे का टाइम है उसका क्लोज होने का। तो फिर सोचा चलो मतलब बैठ जाते हैं, जाके 10 मिनट हम बैठ पाए होंगे, लगभग 6:40 का टाइम अप्रोक्स होगा। उस टाइम पे सडनली एक जो गार्डमैन थे वो नीचे शाउट करते हुए चिल्लाते हुए आए कि तुरंत खाली करो खाली करो, जैसे जो बैठे हो तुरंत से जल्दी से लाइब्रेरी खाली करो, बहुत तेज पानी आ रहा। बस उन्होंने इतना लास्टली बोला है और वैसे ही स्टूडेंट हम लोग उठ दिए। जैसे हम लोग उठे तो सामने वाले उसमें 2 एग्जिट जो गेट थे, जो मतलब बाहर निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट दोनों गेट थे बैक साइड में। तो सर उसमें जो क्या था, पीछे वाले जो गेट थे उसमें से पानी पहले आना स्टार्ट हो गया था। तो वहां हमने पानी आ चुका है, तो सभी बच्चे जो मैन एंट्री गेट था उसमें से निकलना स्टार्ट हो गए। तो जितने तेजी से निकले उतनी ही तेजी से पानी, बहुत तेजी से सर जो स्पीड पानी की थी, जो फ्लो था, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। तो हम जितने निकल पाए उस टाइम पे जल्दी से निकल गए और हमें बाहर नहीं निकाला गया, मतलब कोचिंग से बाहर नहीं निकाला गया, हमें ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट किया गया था। कि कोचिंग से बाहर वो स्टाफ वाले कह रहे थे बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा है, रोड भी ब्लॉक है और आपका जो कोचिंग पूरी भरी हुई है, तो आप ऊपर जाओ, ऊपर सेफ हो आप लोग, इस वजह से। तो आप दौड़े ऊपर, और बाकी लोग क्यों नहीं दौड़ पाए जैसे आप आ गए बाहर? बाकी एक्चुअली बात क्या थी सर, क्या बाकी लोग जो कुछ लोग ऐसे थे कॉर्नर में बैठे थे, बिल्कुल जो आपका अंडर बेसमेंट में जो कॉर्नर साइड होते हैं, तो कुछ मतलब बच्चे ऐसे होते हैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहते, तो बिल्कुल अपना फोन आप पकड़ के बैठते हैं। तो जो बच्चे उस साइड पे बैठे थे, बिल्कुल जो डीप में बैठे थे जाके, और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पानी इस तरीके से मतलब आपको फ्लो करेगा। क्यों पानी नीचे आता है तो पहले ये लगता है कि पैर पे जाएगा या फिर थोड़ा थोड़ा धीमे बढ़ेगा। हरेंद्र 1 मिनट के लिए रुकिएगा, आप रुके रहिए मेरे साथ। एक्चुअली ग्राउंड से एक रिपोर्ट आ रही है, मुझे वो थोड़ा देखनी है, दर्शकों को दिखानी है। Outside the Municipal Corporation of Delhi, I believe Anjali from Republic Bharat is there reporting live, and let's cut to her. There is a breaking news development also. The matter is all set to reach the Delhi High Court with a petition being filed, and Anjali perhaps has more details if we can go to her. The civic apathy case now is all set to be heard in the High Court. It's unfortunate that only after these kind of tragedies pan out that the higher-ups get into action mode. Anjali is live with us. Anjali, आप शायद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के बाहर हैं, बताएं एमसीडी क्या एक्शन कर रही है और कोई जवाब है उनके पास कि इस तरह की जो त्रासदी होती है उसके बाद वो एक्शन में हरकत में आते हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी ये एक्शन लिया गया है, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजेंद्र नगर पर है और एक्शन लिया गया है। दरअसल करोल बाग के टोटल 7 प्रॉपर्टी को सील किया गया है। इसके अलावा राजेंद्र नगर की 3 प्रॉपर्टी को सील किया गया है और जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स इन मालिकों के पास पहले से ही मौजूद थे किसी भी बिल्डिंग में कोचिंग चलाने के लिए, तो बेसमेंट में ये पाया गया है कि बेसमेंट में पहले ही अनुमति नहीं दी गई थी एमसीडी की ओर से कि यहाँ पर लाइब्रेरी या फिर क्लासेस चलाई जाए। बेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज की ही अनुमति थी। तो यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई है इन कोचिंग संचालकों की ओर से और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है एमसीडी की ओर से। लेकिन एमसीडी की ओर से अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया। जब नाराजगी देखी गई शैली ओबराय का पोस्टर जिस पर कालिक पोती गई, उसके बाद ये एक्शन देखा गया। यानी कि इससे पहले कई बार शिकायत भी दर्ज की जा चुकी थी और वही राउज जो कोचिंग है उसके ही एक स्टूडेंट ने शिकायत कराई थी 26 जून को। उसके बावजूद वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया एमसीडी की ओर से। तो फिलहाल अब जब छात्रों का लगातार प्रोटेस्ट
बर्स्ट हो रहा है तब एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, action only follows when these kind of tragedies pan out. I continue my thank you so much Anjali for joining us. I continue my conversation with Harendra, who's a witness to that incident. Sir, I want Yes Harendra, please go ahead. हृदय नाम है। बोलिए हरेंद्र। तो सर एक्चुअली मेरा नाम हृदय है, हृदय, सो सॉरी हृदय। तो हम लोग जब बाहर से मतलब हम उस टाइम से बाहर जब निकलना स्टार्ट हुए तो जितने बच्चे बाहर बहुत सारे मतलब स्टार्टिंग के 35 से 40 बच्चे अप्रोक्स होंगे, 30-35 इतने ही मतलब इतने ही होंगे। तो हम लोग निकल चुके थे उस टाइम तक, लेकिन जब ऊपर हमें बिठा दिया गया तब तक नीचे से आवाज आई कि गेट टूट गया, जो मेन गेट जो उसमें एंट्री गेट था सर, कांच का बना हुआ था, वो कांच का गेट टूट गया। उसके बाद जो बच्चे निकलने की कोशिश कर रहे थे वो गेट में कुछ स्टक हुए गेट की वजह से, और गेट की वजह से एक दो बच्चे मेरे साथ जो ऊपर जो बाद में निकल के आया उसके काफी चोटें भी आई हुई थी, कैजुअलिटी यहाँ पर उनके हुई थी, काफी सिर में और उनके पूरे शरीर पे ब्लड लगा हुआ था उस टाइम पे। फिर वहां ट्रीटमेंट किया गया। तो जो ये 7-8 बच्चे फिर बाद में जो बच्चे रह गए हैं सर, वो फ्लड इतनी तेजी से पानी भरा, 5 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट ओवरफ्लो हो चुका था सर। 5 मिनट में? ये कितना स्क्वायर फीट में आइडिया दीजिए, कितना बड़ा बेसमेंट है अंदाजन? कितना बड़ा एरिया है, कितना मतलब हॉल जो है जहाँ पे बैठते हैं सब, कितना बड़ा है? सर इतना तो नहीं, इतना मतलब अंदाजा तो नहीं लगाया, लेकिन उसमें ये है कि लगभग 200 बच्चे का आप बैठ के एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 200 बच्चे? हाँ, अब उसमें मॉक टेस्ट होते थे और उस हिसाब से सीटें करीब 2000 स्क्वायर फीट का तो एरिया होगा। पूरी सर जितनी बिल्डिंग है ना इनकी पूरी ऊपर जो दिखती है पूरी नीचे बेसमेंट है ये। हाँ पूरा बेसमेंट है, पूरा बेसमेंट। तो ये जो बात है कि बिजली बंद कर दी और उसके कारण वो जो बायोमेट्रिक एग्जिट एक्सेस कंट्रोल होता है वो बंद हो गया और फिर स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल पाए, ये बात कितनी सही है? नहीं सर, वो बंद लाइट इस वजह से काटी गई थी क्योंकि उसमें कहीं करंट या कहीं ऐसा फ्लो ना हो जाए जो बच्चे ऊपर है पूरे बिल्डिंग में फिर करंट ना आ जाए, इस वजह से बंद किया गया। और लाइट बंद करने के बाद पता ही नहीं था कि उस 5 मिनट पहले बात पता नहीं था बच्चे इसमें हैं। जब लास्ट एक जो बच्चा पानी से निकल के ऊपर आया था उसने बताया कि मेरे पैर में टच हुए हैं कुछ हाथ पैर, तो वहां पर अभी कुछ बचे हुए हैं। उसने जब बताया कि तब हम लोगों को लगभग 5 मिनट बाद ये पता चला कि अभी भी उसमें बच्चे फंसे हुए हैं। तो मतलब सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है कि जब वो गार्ड नीचे आया चिल्ला के बताया कि आप निकलिए, वो खुद वहां रुका नहीं जब तक कि आखिरी बच्चा निकल ना जाए। हाँ नहीं रुका कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सभी को फिर अपना यही इस तरीके से निकलना ही हुआ। जो वहां पर केयर कर मतलब जो आपका उसमें बैठते थे जो सर पे, वो भी फिर साथ में निकल दिए। पर मैंने मतलब किसी ने देखा नहीं कौन निकल रहा है कौन नहीं निकला, जिसे जब मतलब जो उस आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस तरीके से निकाला ही गया है जैसे जो निकला, पर नहीं देखा कि कौन रह गया कौन पहले अपने खुद को ही निकाला। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 3 लोगों की जान गई है, 3 एस्पिरेंट्स की जान गई है, उसमें से किसी को आप पर्सनली जानते थे? पर्सनली सर लाइब्रेरी में जो बैठते हैं कभी कभी किसी से बात हो जाती है रैंडमली, कोई अब जैसे किसी के साथ में बैठ गया जाके, वैसे मेरे न बैच का है ना जीएस का है ऑप्शनल का है, लेकिन अगर साथ में लाइव बैठे हैं तो कुछ डिस्कस हो गया। बट हाँ इन्हें एक जो थी श्वेता स्नेहा यादव, हाँ उनको एक दो बार हम लोग पीएचआर में उनकी फ्रेंड थी, तो इस हिसाब से उन्हें बात कभी एक बार हुई थी। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो एमसीडी सील करेगा और जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश करेगी और जो सेंटर के लोग हैं मैनेजमेंट के उसमें से 2 को तो हिरासत में लेके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, पर ये खाना पूरी हो जाएगी, सब भूल जाएंगे लोग 15 दिन बाद, 1 महीने बाद? सर एमसीडी अब अपना काम अब कर रही है, वो काम मैंने 7 बजे कॉल लगाया था सर एमसीडी को, और जो उसका नकुल लड़का था उसकी जो बहन जिसकी डेथ हुई है मतलब उसकी लगती थी कजन, वो रो रहा था और हम लोग सब चिल्ला रहे थे। आसपास की कोचिंग बिल्डिंग्स और सारे सड़क के बाहर इधर रोड पर सब सुन रहे थे। कोई अब आप देखिए कोचिंग्स अब सारी इकट्ठी हो जाती है कि अब सब छुट्टी कर रहे हैं और सब अपना एकजुट हैं कि हम ये, लेकिन उस टाइम पे सर सिंगल पर्सन किसी आसपास आपके बाजीराम पास में बगल में थी, उसके बाद उसपे ये आपकी श्रीराम आईएएस,
मतलब उस टाइम पे कोई भी बंदा किसी भी कोचिंग से कोई हेल्प के लिए कोई नहीं आया। हम बच्चे ही आपस में चिल्ला रहे थे, रस्सी नहीं थी, पाइप डाल के वो कंडीशन सर, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट सर। यस दिव्यांशु, आप बताइए। सर इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया ना एक्शन क्या लेंगे। सो सर ये कोचिंग जो माफिया है वहाँ पे, सारे माफिया सिंडिकेट है इनका, ये पहले से तैयार है। मेरा एक ग्रुप है, एक कोचिंग है ऑप्शनल मैंने की है, वैद ICS करके एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल कराते हैं। तो उनका मैं मैसेज दिखाऊँ अगर आपको, तो उनका पहले से मैसेज आ गया है कि हम लोग बेसमेंट में क्लासें अब नहीं करवाएंगे फर्दर नोटिस तक, तब तक स्टडी रूम में आप लोग मत पढ़िएगा, हम वहाँ क्लासेस कराएंगे। मतलब वो पहले से तैयार है। ऑब्वियसली वो तो अब तो कोई करने नहीं देगा ना उनको। वो पहले से तैयार है कि हम 15 दिन रोक लेंगे, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा, हम फिर से क्लासेस शुरू कर देंगे। तो सर ये MCD की बहुत बड़ी, सर सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पिछली बार जैसे मुखर्जी नगर में आग लगी थी 1 साल पहले, संस्कृति आई इसमें सर चल रही। ये बताइए, ये जो MCD के जो कमिश्नर है वो IAS ऑफिसर हैं, है ना? जो बिजली अधिकारी हैं उनके बॉस कोई IAS ऑफिसर होंगे, आप लोग IAS बनने वाले हैं, तो ये करप्शन कहाँ शुरू होता है? आप तो अभी सोचते नहीं होंगे कि हम जाके करप्शन करेंगे। बस सर इसी बात का दुख है, असली दुख इसी बात का है कि वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते सर। और मेरा तो मानना है कि सर प्लीज़ कि कम से कम MCD का कोई आदमी, एक अधिकारी इस्तीफा तो दे, NOC वाला इस्तीफा दे, जो NOC वेरीफाई करता है, जो इंस्पेक्शन करता है या जो एक्शन लेता है, एक इस्तीफा तो करवा दो कम से कम। कभी सर कोई एक्शन ही नहीं होता है, तभी इनका सिंडिकेट चलता रहता है। लेवल पे MCD ने कभी कोई ना एक्शन लिया, ना उन्होंने कभी कोई अपनी तरफ से ऐसी कोई भी काम किया। सर इतना पैसा ये लोग खिला देते हैं ना कि एक्शन क्या ही लेंगे वो लोग। तो पैसा तो आपका ही है ना? वही सर, क्या ही बताया जाए, इतना पैसा लेते हैं सब उधर कहना कि मैनेज कर रहे हैं अपने। ऐसे पैसे लाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पढ़ते हैं। आप कहाँ से आते हैं हृदय? यूपी से सर। कहाँ से? कासगंज। कासगंज से। और आप कितना महीने का खर्चा करके यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, लगभग 15,000 हो गया। और फिर ये सब देखने को मिलता है? सर अब मैं रहना नहीं चाहता। तो डर का माहौल है क्या? डर का माहौल नहीं है, लेकिन सर डर किस बात से? डर है सिस्टम से, डर है यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ का लोकल पूरा इकोसिस्टम बना हुआ, उससे डर है कोचिंग, मतलब कोचिंग वाले क्या, वो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद बच्चा कहाँ गया, क्या किया उसके, और वो क्या कर रहा है, वे केयर ही नहीं करते, दे डोंट केयर। अब कहीं भी जाओ ना, बच्चे बस आ जाओ, फीस जमा एक बार करवा लो, फर्स्ट टाइम पेमेंट करवा लो, बाकी बाद में वो पढ़ाएं, छुट्टी करें, कुछ भी करें। आपको क्या लगता है, ये कोचिंग वाले कह देते हैं कि चलो ठीक है आपका 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा और वो टाइम, लेकिन क्या 10-10 महीने क्लासेस लगाती। अब आप मैं वैसे नहीं चाह रहा था। देखिए व्यूअर्स, यू नो, फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स टू से that they are scared of the system is a sad commentary on the system. And though MCD commissioner and the IAS officer who helps the electricity supply, remember just few days back we had another civil service aspirant getting electrocuted in Delhi in a very similar circumstance while negotiating a waterlogged road walking back home. Imagine, these are civil service aspirants, those 3 unfortunate dead. They could have been an IAS officer or an IPS officer. They would have become part of the system. What example the system is setting, what example the system is projecting for these very idealist youth who are aspiring for that office. I think it's a sad commentary on the manner in which the MCD is really managing the affairs. Hopefully this would act as a wake-up call. Thank you so much Divyanshu and Hridesh for joining us, and remember, tomorrow we are going to follow this story as closely as we can to bring you every aspect of corruption which led to this tragedy panning out on Saturday. And in fact, it's going to be our focus all day Monday, that's tomorrow. Keep watching for the latest on how the investigation is panning out as we try to hold those responsible for this accountable.